ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے سال مطلب جون کا جو بجٹ جو ہے اس کے بعد شاید اسمبلی ڈیزالو، ہماری رائے ہے اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اگلے بجٹ کے فوراً بعد، خود ہی ریکمینڈ کر کے ڈیزالو کریں، وزیر اعلیٰ کے ذریعے سمری ڈال کے اسمبلی کو ڈیزالو کروائیں اور اکتوبر نومبر تک الیکشن کا ماحول پیدا ہو سکے، تاکہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کا لمبا پیریڈ ہے اس سے ایشوز پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا نہ ہوں اور ہم اپنے 6 مہینے کی میعاد کو کم کریں اور 6 مہینے قبل الیکشن کروا دیں۔ کی گئی ہیں سوال گرین کمپنی کیوں آیا، وائٹ کمپنی کیوں آئی، بلیک کمپنی کیوں آئی، اس کمپنی کا سوال نہیں ہے، اس اسٹینڈرڈ کے اوپر سوال ہے۔ حلقہ 2 کے جو پولیٹیشنز ہیں، بالخصوص حلقہ 2 کے پولیٹیشنز جس جماعت میں بھی ہیں وہ کسی جماعت کے مستقل رکن نہیں رہتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی آج آپ کے سامنے مرکز میں حکومت میں بھی نہیں ہے، ادھر بھی سچ ہم کوئی حکومت میں نہیں ہیں۔ صرف پیپلز پارٹی کی یہ کیفیت نہیں ہے، اس وقت تحریک انصاف کی بھی یہ کیفیت ہے، اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی یہ کیفیت ہے، اس وقت دیگر جماعتوں کی بھی یہ کیفیت ہے جو پیپلز پارٹی کی سے کیفیت ہے۔ میں اسمبلی میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں نا، اپوزیشن بھی میرے خلاف تقریر کرتا ہے، اپوزیشن کا بندہ بھی، حکومت کا بندہ بھی، میں حکومت میں بھی نہیں ہوں لیکن تقریروں کا رخ میری طرف ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے یا پیپلز پارٹی کا جو آئین ہے وہ یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں خود کو وزیر اعلیٰ کا امیدوار بنا کے اعلان کروں۔ گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنانے کا اختیار پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے پاس ہے۔ آپ کے مطلب انتظامی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی راضی ہیں اس کے اوپر قانون سازی کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی کہیں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہیں سے کوئی امر مانع نظر نہیں آ رہا۔ تو فرض کریں کہ ہم اس حکومت کا حصہ رہ کے، ہم یہ ساری باتیں برداشت کر کے، آپ کے سوالات لے کے اگر ہم حق ملکیت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ پھر گلگت بلتستان کی عوام کی کامیابی ہے۔ امید کر رہے ہیں کہ جولائی میں یہ بل پاس ہو سکے، کہ ابھی تو اپوزیشن نے بھی یہ دھمکی دی کہ ہم اس کے اوپر بل لانا چاہتے ہیں، اگر ہم حکومت سے نہیں کر سکے تو اپوزیشن سے بل آ گیا تو ہم نے ووٹ دینا ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ آج ہم دورے پہ ہیں، اس گانچے کے اندر ہیں، کھپلو میں۔ بنیادی طور پہ ہم اپنے پارٹی ورکر سے ملنے کے لیے اور جعفر صاحب کے چھوٹے بھائی کی فوتگی ہوئی تھی اس کے فاتحے کے لیے آئے تھے، تو ساتھ میں پھر ورکروں کے ساتھ انٹریکشن کیا اور گپ شپ کیا۔ اس سے ایک دن قبل پیپلز پارٹی نے آل پارٹیز کانفرنس کیا تھا اور اس سکردو سینٹر کے اندر وہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ بنیادی طور پہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہیں، پولیٹیکل ورکر بھی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس پوری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے اپنی ایگزسٹنس اور اپنے ایشوز کے اوپر کسی کامن ایجنڈے کے اوپر جمع ہوں، تو اس حوالے سے تھی وہاں پہ بہت اچھی رہی کانفرنس کے نتیجے میں اعلامیہ بھی جاری ہوا۔ اس کانفرنس کا جو بائیکاٹ تھا وہ تحریک انصاف نے کیا اور MWM نے کیا تھا۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نظام ہے تمام پولیٹیکل ورکرز کو گلگت بلتستان میں جو پذیرائی نہیں مل رہی ہے اس کے اوپر سوالات تھے، تو ورکرز کے سوالات تھے، تو لیڈرشپ تھی تو اس کا جواب دیا گیا۔ گلگت بلتستان بھی ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہاں کے جو ایشوز ہیں، یہاں کے جو معاملات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو نظام حکومت ہے یہ اس کا فائدہ عوام کو ہونا چاہیے۔ مسائل حل ہونے کے بجائے یہ کچھ اور ہو رہا ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ اشرافیہ کو سپورٹ کرتا ہے، یہ اشرافیہ کو مستفید کرتا ہے۔ کوئی اس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہیں، ضرور ہیں، لیکن پھر بھی بینگ پولیٹیکل ورکر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پولیٹیکل ورکرز کے لیے آواز بلند کریں، ان کے لیے جدوجہد کریں، گلگت بلتستان کے عوام کی بات کریں۔ تو اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ جب بھی مطلب پیپلز پارٹی کا عمل دخل ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کہیں پہ حکومت میں رہی ہے تو اس صورتحال میں گلگت بلتستان کے عوام کی خدمت ہوئی ہے۔ آج بھی ہمیں اقبال صاحب نے بڑی گندم سبسڈی کے اوپر بڑی بات کی۔ ہمارے ورکرز کی ٹریننگ یہ ہے کہ ہم مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں گندم کی سبسڈی مطلب عوام کا حق ہے، اس کے اوپر کسی قسم کی کٹوتی یا کسی قسم کی کمی بیشی کے اوپر ہم حامی نہیں ہوتی ہے پیپلز پارٹی۔ اس پہ ڈیمانڈ آئی کہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین معافی مانگیں، تو ہم معافی مانگنے میں کوئی کباعت محسوس
ہم نہیں کرتے. ہم گلگت بلتستان کے عوام میں سے ہیں. اگر ہمارے کسی مطلب ممبر سے غلطی ہو گئی ہے یا مطلب ادروائز کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کی معذرت کرنے میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہماری سیاست گلگت بلتستان کے عوام کے گرد گھومتی ہے, اپنے مفادات کے گرد نہیں گھومتی. نہ ہی ہمارے کوئی کاروباری مفادات ہیں, نہ ہمارے کوئی مالی مفادات ہیں. ہمارے مفادات ہی گلگت بلتستان کے عوام سے جڑے ہوئے ہیں, ان کے حقوق کے لیے بات اٹھاتے رہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آ کے یہاں پر بھی بلتستان کا دورہ ہے اور مختلف ضلعوں میں ہم اس وقت جا رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں, حکومت کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کی پرفارمنس کو بھی دیکھ رہے ہیں, مسائل کو بھی سنتے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی. سر اس میں ایک اور چیز بتا دیجیے گا کہ آپ کے بیانات اور جو مختلف جگہ پر آپ تقریر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہیں, لیکن حکومت تو اتحادی پیپلز پارٹی تو اتحادی ہے حکومت کی, اور اس تو یہ کے دونوں سائڈ سے سر اسی یہ سوال نتی کر لیں چونکہ آپ پہلی دفعہ آئے گا اچھے میں مطلب آفٹر اے لانگ ٹائم یہاں پہ آئے ہیں. تو جب یہ حکومت سازی کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کا پوزیشن اور آپ کے جو پارٹی کے اعلیٰ ٹاپ قیادت تھے, جو وفاقی قیادت تھے, ان کی مطلب اسٹیٹمنٹ میں ٹوٹلی تضاد آ رہا تھا. اور آپ آج بھی جو ہے نا ایک سینئر منسٹری کے لیے بغیر یعنی آپ کا جو ایک اپنا پوزیشن تھا اس وقت واضح, اس وقت اور آج کے جو پوزیشن ہے وہ واضح کر کے ہم مطلب اس حکومت میں ہیں تو کسی وجہ سے ہیں. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں رہ کے ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دے سکیں. ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے اور ہم اس پہ جدوجہد کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی حکومت کے ذریعے سے ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دیں, ان کے شاملات دے کے قانون کو پاس کریں اور گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کوئی اس حکومت سے بھی کوئی مفادات دے سکیں, ان کے لیے کوئی مراد دے سکیں. ان شرائط کے اوپر ہم اس حکومت میں ہیں, کسی وزارت کی بنیاد پہ نہیں ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے. اور آپ نے کوئی وزارت کیوں نہیں ہے پرسنلی؟ وزارت نہ لینا ایک ڈفرینٹ فیکٹر ہے, فنامنا ڈفرینٹ ہے. چونکہ ہمیں تین وزارتیں ہمیں ٹوٹل ملی تھی, تو 3 میں ایک ڈپٹی اسپیکر, 2 منسٹریاں ملی تھی. تو ہمارے جو ممبران تھے ان میں سے جو پرائرٹائز ہم نے کی ہے اس میں چونکہ بینگ صدر پریزیڈنٹ ہوں پارٹی کا, تو پارٹی کے صدر ہونے کے حوالے سے میں کسی ایسی جماعت کے نیچے نہیں جا سکتا جس کی اپنی جماعت نہ ہو. تو اس صورتحال میں مجھے پھر مطلب سیکریفائز کرنا پڑا اور میں نے وزارت نہیں لیا, اور میرے باقی جو دوست ہیں ان کو وزارت دی گئی ہے اور وہ وزارت کے اندر ہیں. حاکمیت اور حق ملکیت کا جو نعرہ آپ لوگوں نے شروع سے لگا رہے ہیں, اور آج گلگت بلتستان کی بہت ساری جو زمینیں ہیں, بہت سارے جو بلڈنگ سے تبدیلی کی ریسٹ ہاؤس کی شکل میں, وہ سارے بہت کم داموں پہ بغیر کسی پروٹیکشن کے ایک مخصوص ادارے کو لیز پہ دے رہے ہیں. اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے نعرہ اور اس عمل میں جو نا معاملات تضاد آ رہے ہیں؟ حق ملکیت کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہمارا جو حق ملکیت کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان کی زمینوں کو, گلگت بلتستان کے وسائل کو, گلگت بلتستان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں اس میں گلگت بلتستان کے عوام کو مالک سمجھتے ہیں. ہم مطلب چیف سیکریٹری کے آفس کو گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت نہیں سے, وہ سرکار کا دفتر ہے, یا مطلب چیف منسٹر کا دفتر ہے, تو وہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ملکیت ہے. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی ملکیت ہونا اور گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیت ہونے میں تھوڑا سا فرق. ہم گلگت بلتستان کے عوام کی ملکیتوں کے تحفظ کی ذمہ داری پہ ہیں. اب گورنمنٹ کا یہ بلڈنگ ہے, آج ایک ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گی, کل دوسرے ڈپارٹمنٹ کے پاس جائے گی, یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. میں گورنمنٹ میں ہوتا تو مجھے سوال پوچھتے. یہ چونکہ جن منسٹرز نے فیصلہ کیا ہے وہی جواب دیں گے. اس حد تک میرا سوال نہیں ہے, میرے لیے مطلب یہ کوئی مٹیریل بات نہیں ہے. پارٹی کا لیڈ بھی کرتے ہیں, میں پارٹی کو لیڈ کرتا ہوں. بھی ہے پولیٹیکلی, تو آپ کا اپنا پرسنل ویو کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں نا, گلگت بلتستان کے زمینوں کے اوپر گلگت بلتستان کے عوام مالک ہیں, اس میں سے ایک انچ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کریں گے. کہیں پہ باقی جو لیز والا جو سبجیکٹ پہ آپ کا پرسنل ویو کیا ہے؟ نہیں, لیز والا جو سبجیکٹ ہے, فرض کریں کہ کوئی بلڈنگ لیز پہ ہوئی ہے, فرض کریں کہ کوئی آپ کا ریسٹ ہاؤس لیز پہ گیا ہے, تو اس کی ذمہ داری گلگت بلتستان کے عوام کی نہیں. فرض کریں کہ پاکستان مطلب پی ڈی سی کے بہت سارے مطلب ہوٹلز گلگت بلتستان میں تھے, وہ ہوٹلز بند پڑے رہے, پی ڈی سی ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ پی ڈی سی کے ہوٹلز لیز آؤٹ ہو گئے. وہ لیز آؤٹ ہو گئے تو مختلف کمپنیز آ گئی, ان لوگوں نے لیز لیا. تو پی ڈی سی کی ملکیت تھی, پی ڈی سی کی ملکیت ہونے کی بنیاد پر دیگر صوبوں کو تو وہ پی ڈی سی کی ملکیتیں منتقل ہو گئیں, لیکن گلگت بلتستان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ عوام کو منتقل کرنے کی بجائے وہ اس کو لیز آؤٹ کیا گیا, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کیا تھا. سر یہ ساتھ ہی پی ڈی سی بھی ہے, اور یہاں ایک ڈیفینیشن کے ہوٹل کے نام سے کوئی بندہ جو ہوٹل چلا رہا ہے,
जब वो चीज़ें लीज पे हुए उस वक्त प्रॉपरली एक कोटेशन लीज पर देने का जो एक तरीक़ेकार था वो वजह हो गया। बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने उसमें हिस्सा लिया और आज उसका रेंट और इसी रेस्ट हाउस का रेंट जो हमने पेपर में देखा है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ जीबी के लोगों के साथ साथ बाकी जो प्राइवेट फर्म्स है उनको यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया। उस हवाले से मतलब उस लीज के तरीक़ेकार पर भी थोड़ा सा मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं। बात यह है ना कि वो एक गवर्नमेंट का फनाम है। फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट कोई रोड बनाना चाहती है, उसका टेंडर होता है, एक प्रोसेस में टेंडर होता है, उसमें FWO भी कंटेस्ट करता है, एक ठेकेदार भी कंटेस्ट करता है। ये इस तरह का मामला है हमारे लिए, ठीक है कि नहीं। इसमें इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ये पब्लिक इशू नहीं है। पब्लिक इशू आपकी ज़मीनें हैं, आपकी चरागाहें हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके ऊपर अगर किसी कंपनी ने आके कब्ज़ा किया, किसी को अलाट हुई, किसी को मलकियत होने की कोशिश की गई, तो उसके ऊपर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बात करें। और उस पर हम बात कर रहे हैं, और उस पर हम कानून साजी की बात कर रहे हैं, और कानून साजी करके हम मलकियत देना चाहते हैं। हम तो यहाँ तक भी बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों का सेल बंद होना चाहिए। जैसे कश्मीर में मतलब कश्मीर की ज़मीनें कश्मीरी गैर कश्मीरी को नहीं बेच सकते हैं, इस तरह जम्मू कश्मीर में की ज़मीनें जम्मू कश्मीर के अलावा किसी और को नहीं बेचा जा सकता है। हम तो यहाँ तक भी बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के अलावा किसी को फ़रोख्त नहीं होना चाहिए। उसकी एक ख़ास वजह है। इसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान अभी फ्लैश पॉइंट हो गया, दुनिया के अंदर इसकी अहमियत बढ़ गई है। पूरी दुनिया के अंदर मतलब दुनिया की तमाम इन्वेस्टर गिलगित बल्तिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस सूरत हाल में हम अपनी मलकियतें बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कानून साजी की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों का गिलगित बल्तिस्तान से बाहर सेल होने के ऊपर भी पाबंदी का कानून होना चाहिए। उसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बात करनी पड़ेगी, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, इसको नैरेटिव बनाना पड़ेगा, फिर जाके इसके ऊपर कानून साजी की बारी आएगी। अमजद साहब, ये बताइए कि आप अजीब बात कर रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि जो रेस्ट हाउसेस है, सरकारी इदारे हैं, वो किसको दे रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब इस सब्जेक्ट के अंदर ये कंपनी क्यों आई? सर कंपनी, सवाल ये नहीं है कि कंपनी क्यों आई, वो स्टैंडर्ड फ़र्ज़ करें PWD से ये पावर डिपार्टमेंट को चला जाता है, ये किसी और डिपार्टमेंट को चला जाता है, तो जो स्टैंडर्ड एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है उसको वायलेट किया जाता है। जैसे आपने पहले कहा कि बीडिंग होती है, टेंडर होते हैं, कोटेशन तलब की जाती है कि एक हाईएस्ट बोली देने वाले को दी जाती है। इस किस्म की आंखें बंद करके दी गई हैं। सवाल ग्रीन कंपनी क्यों आया, वाइट कंपनी क्यों आई, ब्लैक कंपनी क्यों आई, उस कंपनी का सवाल नहीं है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल है। बात यह है ना कि गवर्नमेंट के अंदर लैप्सेस होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर रोज़ाना लैप्सेस होते हैं, इंतज़ामी तौर पे 100 खामियाँ होती हैं। फ़र्ज़ करें कि आपका मतलब कराकोरम हाईवे का टेंडर था, ठीक है कि नहीं है। इस कराकोरम हाईवे के टेंडर पे चाइनीज़ कंपनी भी थी, FWO भी थी। चाइनीज़ कंपनी ने टेंडर लिया, वो तो एक फॉरेन बॉडी थी ना, उसके ऊपर कभी हमने इतना बड़ा सवाल खड़ा किया कि एक चाइनीज़ कंपनी को कराकोरम हाईवे का टेंडर क्यों दिया गया? या फ़र्ज़ करें कि आपका सिकरदू का हाईवे था, जुगलोट सिकरदू रोड था, उसका टेंडर हुआ, उसके टेंडर के नतीजे में प्राइवेट कंट्रैक्टर्स भी थे, FWO भी था, तो उसके अंदर आके FWO ने विन किया। तो ये जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, कहता हूँ। जो मेरा कहने का मकसद ये है, ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है, ये गवर्नमेंट जवाबदेह है। फ़र्ज़ करें इस गवर्नमेंट ने ये फैसला गलत किया है कि मतलब ग्रीन टूरिज़म को देने का फैसला गलत किया है, तो इसका नतीजा अगले 2-3 साल में आपके सामने आएगा। जैसे कि किसी ज़माने में PDDC बनी, PDDC की कंपनी बनी पाकिस्तान में, और PDDC की कंपनी ने पूरे पाकिस्तान में होटल्स बनाए कि हमने टूरिज़म को प्रमोट करना है, और PDDC की हालत आपके सामने आज। PDDC भी ख़त्म हो गई, वो होटल्स ऑक्शन हो गए। आज PDDC की जगह में एक और कंपनी आ गई ग्रीन टूरिज़म के नाम पे, उसने कहा कि हम होटल की इंडस्ट्री चलाते। ये होटल की इंडस्ट्री चलाना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी चला सकता है। हमारी गुजारिश ये होती है कि रियासत या स्टेट उस सब्जेक्ट में आके काम करे जहाँ पर आम लोग काम नहीं कर सकते। अगर कोई भी चला सकता है तो लोग यही पूछ रहे हैं ना कि यहाँ के नौजवान जो बेरोज़गार हैं, यहाँ के लोगों को मौका दे दें। जैसे आपने पहले कहा कि कश्मीर में जैसे बाहर से लोग नहीं आ सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ के लोग, अगर लोगों के अंदर पोटेंशियल ना हो, लेट सपोज मैं अगर नहीं चला सकता हूँ, मैं उसके अहल नहीं हूँ, तो अलग सवाल है कि बाहर से कोई आएगा। लेकिन अगर मैं एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो वो काम मुझे करने देने की बजाय लेट्स अमजद एडवोकेट साहब को गिलगित से लाके वो काम करने दिया जाए, तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। देखिए बात यह है ना कि आपको इजाज़त, आपको रोका नहीं गया,
आपको होटल बनाने से किसी ने नहीं रोका, मतलब 5 स्टार होटल बना के, होटल ऑलरेडी कायम है, मैं भी वही कहता हूँ ना, मैं आपको इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पिछले 3 साल में मतलब 1.5 से 2,000 होटल्स के रूम्स बना के इस वक्त अच्छी बड़ी इनकम कर रहे हैं, एक अच्छे बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेस वो कर रहे हैं, उसमें किसी की मदद नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ मतलब अपनी मदद आप की है। अगर उनको कहा जाए कि आपने 2,000 और बनाने हैं तो वो 2,000 और बनाने की अहलियत रखते हैं। गवर्नमेंट का काम रेगुलेटर का होता है गवर्नमेंट रेगुलेट करता है कि आप रूम बनाएंगे तो उसका स्टैंडर्ड ये मेंटेन करें। गवर्नमेंट रेट फिक्स करता है कि आप इस स्टैंडर्ड का रूम बनाएंगे तो इसकी रेट इतनी होगी, इसका काम इतना होगा, इसकी चीज़ें। अब गवर्नमेंट खुद इस कारोबार में इंटर हो जाए तो सवालात जन्म लेते हैं, जैसे कि आप सवालात कर रहे हैं। ये सवालात रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैं एक बात करूं, ये जो सवालात हैं, ये सवालात ऐसे नहीं हैं कि इसकी बुनियाद पे कोई तहरीक चले। सिर्फ समझाने की बात ये है, इसके ऊपर सवाल बात किया जा सकता है, इसमें बात की जा सकती है, लेकिन ये सवाल ऐसा नहीं है कि इसकी बुनियाद पर एक तहरीक जन्म ले, मतलब तहरीक वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसमें सर पहले आपने कहा कि जिस तरह गिलगित में बाकी अदर रियाज से जिस तरह कश्मीर वाला जो स्टेट सब्जेक्ट रूल वाला शायद आप बता रहे हैं, तो ये चीज़ें सर पब्लिकली करने के अलावा असेंबली में भी इन चीज़ों के ऊपर जो ना मामला कानून साजी के ज़रिए रोकथाम करने के लिए आप लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं सर? देखिए, इसमें हम तो एक सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। आप हम हक मलकियत पे काम कर रहे हैं, इस हुकूमत का हिस्सा है तो भी हक मलकियत की कंडीशन के ऊपर है कि हमारा हक मलकियत का बिल इस हुकूमत से पास हो। ज़्यादातर हमारी कंडीशन मोर और लेस यही है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा इस बात पे हैं। हमने अगर हुकूमत नहीं ली है या हम इस हुकूमत को कोई मतलब गिराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऐसी इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि हम इस हुकूमत के अंदर रह के इस शर्त पे हैं कि हम हक मलकियत पास कर सकें कम अज़ कम, और उसके लिए हमारे पास पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं है। हमें इस हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, हमें इस हुकूमत के वोट की ज़रूरत है। ये इस हुकूमत से हम वोट मांग रहे हैं, और ये हम पॉलिटिकल पार्टीज से बात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। ये किसी एक जमात का एजेंडा नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की हक मलकियत जो है तमाम जमातों का एजेंडा है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम लोगों का एजेंडा है, तमाम ज़िलों का एजेंडा है, तमाम इलाकों का एजेंडा है, तमाम सब डिवीज़नों का, तहसीलों का, यूनियनों का एजेंडा है। इस एजेंडे के ऊपर हुकूमत राज़ी है। हुकूमत ये समझती है कि हम इसके ऊपर कानून साजी करें। आपके मतलब इंतज़ामी जो स्टेक होल्डर्स है वो भी राज़ी हैं इसके ऊपर कानून साजी के लिए। इस्टेबलिशमेंट का भी कहीं पे कोई रुकावट नहीं है, कहीं से कोई अमर माने नज़र नहीं आ रहा। तो फ़र्ज़ करें कि हम इस हुकूमत का हिस्सा रह के, हम ये सारी बातें बर्दाश्त करके, आपके सवाल लेके अगर हम हक मलकियत करने में कामयाब होते हैं तो ये फिर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की कामयाबी है, ये आप सबकी कामयाबी है, और ये इस हुकूमत की भी कामयाबी है। क्रेडिट इस हुकूमत को जाएगा, हाजी गुलबर साहब को जाएगा कि ये बिल पास होता है तो हाजी गुलबर साहब को क्रेडिट जाएगा, या मतलब इस हुकूमत के अलाइज को जाएगा। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हम फ़र्ज़ करें हुकूमत का हिस्सा हैं या ये सवाल ले रहे हैं, ये तलखियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो किसी वजह से कर रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि पिछले 1 साल में हमने नहीं देखा सर कि अभी तक बिल असेंबली में आए हैं या पास होने के कोई वो चीज़ें नहीं, कब तक? हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में ये बिल पास हो सके, जुलाई में, चूँकि अभी तो अपोजिशन ने भी ये धमकी दी कि हम इसके ऊपर बिल लाना चाहते। अब मतलब अपोजिशन भी बिल ला सकती है ना इस पर। अगर हम हुकूमत से नहीं कर सके, अपोजिशन के बिल आए, तो हमने तो वोट देना है, हमारा काम तो वोट देने का है। हमने उस बिल को फेल तो नहीं कराना। तो अपोजिशन से बिल आ गया तो हमने वोट देना है, उसको कामयाब करना है। अच्छा, हुकूमत से निकल जाएंगे सर फिर आप या नहीं? हुकूमत से निकलने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपोजिशन बिल लेके आती है, हमने आपके साथ कमिटमेंट किया आवाम के साथ, जब बिल आता है तो हम आपका वाद से वादा तोड़ें। हमने तो हर सूरत में वोट देना है ना, इस कंसेप्ट को वोट देना है, हमने इस हक मलकियत को वोट देना है। हमने ये नहीं देखना है बिल किसका है, हमने इस एजेंडे को वोट देना है। हम मतलब जो ही आएगा तो हमने वोट देना है। हमजा साहब, अच्छे की विजिट पे बात करने से पहले तो ये बताइए कि जो APC हुई कल आपके ज़ेर एहतमाम, उसका मुश्तरका एलामिया क्या था? दूसरा आप दूसरा ये बताइए कि जो ज़िला गांशी के आप दौरे पर हैं, चेयरमैन इब्राहिम साहब ने गालिबन, वो वीडियो भी आपने देखी होगी कि जो गालिबन भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर चेयरमैन इब्राहिम साहब ने, जो आपके सदर हैं यहाँ पे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि
जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अभी तक इस हल्का 2 जो जहाँ पे आप बैठे हैं इसकी कैंडिडेट का अभी तक ऐलान नहीं किया है, इसको सेग़ राज में रखा हुआ है। इस तरह की दर्जनों शिकायत हैं, उन शिकायतों का हल कोई निकाला है? जो आप भाईजान बात कर रहे हैं कि उम्मीदवार की, तो उम्मीदवारों की सिलेक्शन का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके अनाउंसमेंट का भी अपना एक निज़ाम है। मतलब हम पार्टी का टिकट का ऐलान की टाइमिंग है, जब वो टाइमिंग आएगी तो उसके ऊपर हम पार्टी के टिकट का ऐलान करेंगे। सरदस हमारे पास कोई टिकट होल्डर तो है ना, हमने पिछला इलेक्शन लड़ा है तो किसी को टिकट दिए, अब वो टिकट होल्डर मौजूद है, जब तक कि नया टिकट ना दे तब तक एक बंदा मौजूद होता है। तो उस हिसाब से हमारे पास गुलाम हरी हैदरी साहब को हमने टिकट दिया हुआ था, उसने इलेक्शन लड़ा है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो जब तक नया टिकट नहीं होता है तब तक वो टिकट होल्डर है, ये ज़हन में रखें। गुलाम अली हैदरी साहब वही सवाल में भी कर रहा था हयात है सर, लेकिन कहीं पर भी नज़र नहीं आता उस दिन से आज तक पीपल्स पार्टी की कोई एक्टिविटी या पब्लिक किसी एक्टिविटी में कहीं पर भी नजर बात आपकी, अगर वो मौजूद नहीं हैं, हाजिर नहीं हैं, तो यही सवालात होते हैं जो टिकटों के फैसले करते हैं, अगला टिकट का फैसला करता है। तो अगला टिकट का फैसला जो है वो वक्त आने पे पीपल्स पार्टी करेगी, ठीक है कि नहीं है? पीपल्स पार्टी ने टिकट का फैसला करना है। हैदरी साहब को जब पिछली दफ़ा जब टिकट देते वक्त उनकी कौन सी ऐसी कारकर्दगी थी या गांचे में उन्होंने कौन सी ऐसी खदमात सर अंजाम दी थी जिसकी बिना पर उन्हें टिकट दिया गया था? अब ये सवाल चूँकि किस्सा परीना हो गया, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक नई शुरुआत करनी है। हमने देखें, बात ये थी उस वक्त हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। उस वक्त हम इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे थे। बल्तिस्तान के अंदर जो माहौल होता है इलेक्शन के दिनों में, हमें पता है कि यहाँ पे क्या साइकी चलती है, क्या हालात चलते हैं, कैंडिडेट की क्या कैफियत होती है। अब मुझे कोई एक उम्मीदवार ऐसा बताएं जो किसी पार्टी के अंदर मुस्तकिल है। आज भी अगर आपको मुस्तकिल लोग नज़र आते हैं तो पीपल्स पार्टी में नज़र आते हैं, ठीक है कि नहीं है? मुस्तकिल लोग पीपल्स पार्टी में नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा मुझे कोई एक जमात का एक उम्मीदवार बताएं जो मुस्तकिल है। तो गांचे में लोग मुस्तकिल सियासत नहीं करते, पार्टियों के साथ मुस्तकिल वफादारी नहीं करते, तो पीपल्स पार्टी के लोग वफादारी करते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ लोग मुंसलिक हैं, जो अटैच्ड हैं वो बेचारे हमारे साथ अरसों से अटैच हैं। उनको बहुत सारी ऑफर्स होती रही हैं, बहुत सारे मुश्किल हालात पीपल्स पार्टी को आते रहे, उनमें हमारे साथ रहें। तो ये सूरत हाल रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो बल्तिस्तान भर का जो माहौल है, या मतलब इधर मतलब गांचे के अंदर जो इलेक्शन के दिनों में जो माहौल पैदा होता है, तो बहुत सारे लोग हमारे से रब्ते में थे, एंड टाइम पे वो हमारे साथ अटैच नहीं हुए या चले गए। टिकट तो हमने देना था। सर गांचे आप में और हल्का ना मोर्चा के बीच में सर उस पे तो कारकुनों को थोड़ा सा तशवीश है, उस पे थोड़ा बता दीजिएगा सर। मुझे तो आपको कोई मतलब हमारे कारकुनों के अंदर कोई इस तरह का सवाल अभी तक आ नहीं रहा है। ये इसका मैं जवाब दूंगा। नहीं, यहाँ ये कोई इसमें इब्राहिम साहब जवाब दे, तो मुझे नहीं पता। क्योंकि ये बात की मैंने है, हमारे पार्टी की यही खूबी है, हम अपने क़यादत पर खुल के तनकीद करते हैं, और अल्लाह के फजल से इस पार्टी के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एक बिना वर्कर की जो तनकीद है, तामीरी तनकीद को पॉजिटिव ले लेते हैं। और मैं हमारे सदर साहब और गवर्नर साहब का मशहूर को ममनून हूँ कि मेरी वीडियो की वजह से इन्होंने बहुत ही माहौल को बिल्कुल क्लियर किया है। ये बिल्कुल पार्टी के अंदर होती है कि इस किस्म की चीज़ें पैदा होती हैं, अगर पैदा ना हुआ तो पैदा की जाती है। और हम वर्करों का ये काम होता है उनका वक्तन फ़ौक़तन ऐसे मामूली चीज़ों को जो है इनके नोटिस में लाएं, तो वो फौरी तौर पर इन मामलात को साइड लाइन करने का मौक़े निकालता है। तो यही बात मैंने ही कहा था, और मैं ही इन्हीं से और इनसे मिलने के बाद आपको ये बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे थोड़ा सा एक सवाल करना, ये जो आपने सवाल किया, देखिए मुझे तो किसी से कोई इतराज़ नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, पीपल्स पार्टी का मैं सदर हूँ, मुझे पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी पे हूँ। मैं जब तक ज़िम्मेदारी पे हूँ मैं इख्तलाफात नहीं पालता हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं किसी के साथ इख्तलाफ नहीं पालता हूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है कि मैं इख्तलाफात को पसंद नहीं करता। अब इस सूरत हाल में मैं गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ सिकरदो हल्का नंबर 1 का तो सदर का झगड़ा तो नहीं है मेरे साथ। मैं 24 हल्के चला रहा हूँ, 24 हल्कों में कहीं पे कोई एतराज़ है तो आप बता दें।
सर सर 24 मेहदी शाह हल्कों में साहब से सर मेहदी शाह साहब ये भी बातें सुनने में आ रहा है सर कि गवर्नरशिप छोड़ के इलेक्शन में आ रहे हैं कि वो दोबारा वज़ीर-ए-आला बनाने की यार मैं खुद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको। देखिए मैं हमारा बड़ा बुजुर्ग है, हमारा मेरे वाली साहब की जगह में मैंने 10 दफ़ा कहा कि वो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो इलेक्शन लड़ने में रुकावट तो नहीं है। मैंने बारहा कहा कि मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर सकता हूँ, मेरा मंशूर इजाज़त नहीं देता, मेरी पार्टी का मंशूर इजाज़त नहीं देती इस बात की कि मैं ये कहूँ कि मैं वज़ीर आला का उम्मीदवार हूँ। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है या पीपल्स पार्टी का जो आइन है वो ये इजाज़त नहीं देता कि मैं खुद को वज़ीर आला का उम्मीदवार बना के ऐलान करूँ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पास है। वो जैद को बनाए, बकर को बनाए, अमर को बनाए, हमने उसके ज़ेर निगरानी चलना होता। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं किसी ओहदे का एस्पायरेंट नहीं हूँ, मैं कल भी वज़ीर आला का उम्मीदवार नहीं हूँ, याद रखो इसको, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। मुझे पार्टी की लीडरशिप कहेगी तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। पार्टी की लीडरशिप अगर ये तसव्वुर करती है कि मैं इस ओहदे पे मुझे ज़रूरत है, पार्टी को जब ज़रूरत हो गई तो जब तक ज़रूरत होगा मैं चलाऊँगा। आज मैं सदर हूँ तो मैंने डिमांड करके सदर नहीं बनाऊँ, ये सारे वर्कर मौजूद हैं। मैं सदर का उम्मीदवार नहीं था, मैं सदर का उम्मीदवार नहीं था, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है तो मैंने एक्सेप्ट की है। जिस तरह मैंने सदर की जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, इस तरह अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप मुझे वज़ीर आला का उम्मीदवार बना के या मुझे पोर्टफोलियो देगी तो मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं खुद से उम्मीदवार नहीं हूँ। सर इसमें सर इसी में सवाल थोड़ा सा आगे चाहते हुए सर कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है, मेहदी शाह को वज़ीर-ए-आला बनाते हैं और उसकी काबिना में शामिल हो जाएंगे, इसी तरह मुझे कोई देखे मेरी बात सुनो, मैं मतलब क्या पहले वज़ीर आला वो वज़ीर आला नहीं रहे? क्या मैं कौंसिल का मेंबर नहीं रहा? मैंने इस्तीफा दिया था, मैं 5 साल कौंसिल का मेंबर रहा हूँ, मैंने काम किया है उसके साथ। मुझे इस बात का, मेरी पार्टी का लीडरशिप मुझे कल इब्राहिम को मेरा वज़ीर आला बनाए, मैंने इब्राहिम के नीचे काम करना है, मैंने बशारत ज़हीर को वज़ीर आला बनाए, इसके नीचे काम करना है। मैं एक आम पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई एलीट क्लास का आदमी नहीं हूँ। मैं इस अली मदद शेर के अंडर काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। सर एक सवाल, आप पार्टी के सदर है, आप दिल्ली असलम की 24 हल्कों को देखते हैं। हमने देखा है कि चूँकि इस वक्त हम हल्का 2 में मौजूद है, ज़िले गाछी में मौजूद है, तो हमने देखा है हल्का 2 में हमेशा सियासी पीपल्स पार्टी की अंदरूनी सियासत और अंदरूनी अख्तलाफात कभी बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा एक शक्ल अख्तियार कर जाता है। जिस तरह नगर काज़मी इख्तलाफ की वजह से साइड हो गए, उस वक्त भी पार्टी के कुछ लोकल्स और कुछ क़यादत के उसके साथ में इख्तलाफ था। आज की डेट पर भी पीपल्स पार्टी हल्का 2 के जो कुछ आपके जियाले हैं वो हमेशा अपने टॉप और खुसूसन हल्का 1 और हल्का 3 और आप समेत यानी चलो आज मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ, आज हमने इत्तेफाक किया ये इत्तेफाक सर 2 दफ़ा की है। तो हल्का 2 में सर इसी तरह सेम इसी कंटेक्स्ट को लेते हुए कि हल्का 3 में आपका एक जरीना एक इलेक्टेबल्स मौजूद है इस्माइल साहब की शक्ल में। हल्का 1 में हमेशा एक जाफ़र साहब एक अरसे से इलेक्शन पीपल्स पार्टी को उस वक्त सोचना नहीं पड़ता कि टिकट किसको देना है या उसका अल्टरनेट ऐसा कोई बंदा नहीं निकला आज तक। तो सर हल्का 2 में शुरू दिन से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी कभी शीरीन की शक्ल में टोटली अननोन पर्सन थी। उस वक्त शीरीन बेशक वो असम्बली में रही थी लेकिन हल्के के अंदर, इसी तरह लास्ट टाइम जब हैदरी को दिया इसका गिला जो है ना, मेरी बात, मैं आपके सवाल को समझ गया, इसका गिला जो है ना वो हल्का नंबर 1 के तमाम पॉलिटिशियन से करें, वो किसी एक जमात में मुस्तकिल नहीं रहते। हल्का 2 के जो पॉलिटिशियंस हैं, बिलखुसूस हल्का 2 के पॉलिटिशियंस जिस जमात में भी हैं वो किसी जमात के मुस्तकिल रुकन नहीं रहता। सर आप अपने जियाले को आप छोड़ देना, मैं वो छोड़ दें, ये बातें छोड़ दें, आप अपनी बात करें। पहले इस हल्का नंबर 2 की लीडरशिप की बात करें ना, पॉलिटिकल लीडरशिप की, वो किसी एक जमात में मुस्तकिल नहीं रहते जिसकी वजह से ये इशूज़ हमेशा रहेंगे। हल्का नंबर 2 में किसी एक जमात के साथ नहीं, हर जमात के साथ। इस वक्त सिर्फ पीपल्स पार्टी की ये कैफियत नहीं है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की भी ये कैफियत है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की भी ये कैफियत है, इस वक्त दीगर जमातों की भी ये कैफियत है जो पीपल्स पार्टी की से कैफियत है। इसके इशूज़ जो हैं वो आपसे खुद समझते हैं। पिछले दफ़ा आप लोग बिलावल साहब से मिले थे सर, उसके बाद एक हवा चली थी कि एक बात ही चली थी कि इलेक्शन के हवाले से वो चीज़ें चल रही, तो क्या कब तक इलेक्शन मुतवक्को है सर? सर इलेक्शन हम ये समझते हैं कि अगले साल मतलब जून का जो बजट जो है उसके बाद शायद असम्बली डिज़ाल्व, हमारी राय है असम्बली डिज़ाल्व होनी चाहिए।
अगले बजट के फ़ौरन बाद। इसकी वजह यह है कि अगर हम अपना टर्म पूरी करते हैं दिसंबर तक, तो फिर अगले 6 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वेदर इश्यूज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप फिर मतलब ले जाके अगस्त सितंबर तक खींचने वाली बात होगी अगर दिसंबर में असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है। तो इस सूरत हाल से निमटने के लिए असम्बली के तमाम मेंबरान को ये कुर्बानी देने की ज़रूरत है कि हम अगले बजट पेश करके 2025 का बजट पेश करके असम्बली को डिज़ाल्व करें, ख़ुद ही रिकमेंड करके डिज़ाल्व करें, वज़ीर आला के ज़रिए समरी डाल के असम्बली को डिज़ाल्व करवाएं और अक्टूबर नवंबर तक इलेक्शन का माहौल पैदा हो सके, ताकि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट का लंबा पीरियड है इससे इश्यूज़ पैदा होते हैं, मसाइल पैदा होते हैं, वो पैदा ना हो और हम अपने 6 महीने की मियाद को कम करें और 6 महीने कबल इलेक्शन करवा दें। उस सूरत में आपके पास फ्रेश मैंडेट में एक नई हुकूमत आएगी और नई हुकूमत जो आएगी वो आपके मसाइल को समझ सकेगी और मसाइल हल करेगी। इस इशू पे बात करने के लिए किसी पार्टी से गिलगित साहब में जो पार्टियां हैं सर, वफाकी लेवल पे आप लोगों ने अपने कायदा तो आप बेफिक्र रहें, जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा। सर अगले साल सितंबर अक्टूबर में अगले इलेक्शन हो या ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है वो अपना टर्न्योर पूरा करे, नेक्स्ट पीपल्स पार्टी के जीबी में हुकूमत बनने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस हद तक इम्कानात है और किस हद तक तैयारी है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शन की लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे लार्जेस्ट वोट हमारे पास थे। हम तहरीक इंसाफ से भी हमारे पास वोट ज़्यादा थे, लेकिन हुकूमत हमारी नहीं बनाई गई, हमारी सीटें हमसे छीनी गई। तो उस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो मतलब गिलगित बल्तिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड में जो मतलब वर्कर क्लास है या मतलब वोटर्स के फेथ है या लोगों की स्टेट मतलब अटैचमेंट है, वो आप सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी अटैचमेंट है लोगों के साथ, या पीपल्स पार्टी के दामन में कितना है। पीपल्स पार्टी को अगर कंपैरिजन करें किसी जमात के साथ, तो हम तो मतलब 1970 से शुरू होते हैं, तो हमारी तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इस सूरत हाल में आप पीपल्स पार्टी को किसी के साथ मुकाबले में समझते हैं तो आप समझते होंगे, बसूरत दिगर हम ये समझते हैं कि आज तक जो कुछ हुआ है और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा जो कुछ होना है वो पीपल्स पार्टी ने करना है। अगर किसी और को आजमाना चाहती है गिलगित बल्तिस्तान की कौम, हमें इसका बात का भी इतराज़ नहीं है। हम 10 साल अपोजिशन में रहें, 10 साल और रहेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इस गवर्नमेंट के निगरान जो एक लंबी लिस्ट है सर, मुशीर, निगरान, मावनी खुसूसी, इन सब की एक लंबी लिस्ट है और हर शाम कहीं न कहीं पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम देखते हैं उनको, और बज़ाहिर ऐसा हमें नज़र आता है कि गवर्नमेंट यही हालत में चला रहा होता है। क्या राय रखते हैं कुछ अफराद के बारे में? सर, हमारा मौक़िफ़ बहुत सीधा शुरू दिन से, हम पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए काम करते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स की इज़्ज़त करते हैं। पॉलिटिकल वर्कर जिस जमात का हो, जिस जमात का, चाहे वो दीनी जमात का है, मजहबी जमात का है, सियासी जमात का है, वफाकी जमात का है, उस पॉलिटिकल वर्कर की हम एहतराम करते हैं। उसको पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करे और उस बुनियाद पे ये ओहदे तकसीम हो। अब गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इलेक्टेड नुमाइंदों की वक़्त ख़त्म हो गई है, जब से ये नॉन इलेक्टेड पोर्टफोलियोज़ बढ़ गए हैं। मतलब खालिद खुर्शीद साहब ने इतने बढ़ाए, फ़र्ज़ करें उसकी सूरत हाल में सियासत का महवर ख़त्म हो गया, लोग इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते। तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते या इलेक्शन से लड़ के जो लोग आते हैं वो फैसले नहीं करते, कोई और करते हैं। तो उस सूरत हाल में जो डेमोक्रेटिक नाम्स हैं वो कमज़ोर होते हैं, जमहूरी फाउंडेशंस कमज़ोर पड़ जाती हैं। उससे जमहूरी फाउंडेशन से बात आ गई ना कि आपने जैसे कहा कि आपको अमजद एडवोकेट को अगर सदर बनाया है तो आला क़यादत ने बनाया है, चेयरमैन इब्राहिम साहब को गांछे में सदर बनाया है तो अमजद एडवोकेट साहब ने बनाया है। तो फिर वहाँ पे वो जमहूरी फाउंडेशन कहाँ गई कि जहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन्होंने, हालांकि वोट उनके वोट से अमजद एडवोकेट सदर बनता, चेयरमैन इब्राहिम सदर बनते, तो फिर उन वर्करों की औकात रह जाती ना। यहाँ तो आपने ऊपर से ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं गिलगित बल्तिस्तान का सदर बनाऊँ तो मेरे वर्करों की एक किराए की बुनियाद पर बनाऊँ, मैं वर्करों की ताकत पे बनाऊँ। मुझे वर्करों ने नॉमिनेट किया तो पार्टी लीडरशिप ने ऐलान किया, मैं तो बाज़ाब्ता एक प्रोसेस के ज़रिए आया हुआ, ठीक है कि नहीं है। उस प्रोसेस के ज़रिए आया हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक तंजीम मौजूद थी, मेरी तंजीम मुझे छोड़ के किसी और जमात में चले गए, ठीक है कि नहीं है। मेरे सदर किसी और जमात में चला गया, मेरी जनरल सेक्रेटरी को किसी और जमात में चला गया। इस सूरत हाल में मेरी तंजीम के जो ओहदेदार थे, जिनको हमने 4 साल 5 साल इतने प्रोटोकॉल में आपके सामने कितना हमने उनके साथ काम किया, कितनी हमने अहमियत दी उनको,
یہ سارا پروسیس کرنا ہوتا ہے. 11th آر وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھو پیپلز پارٹی نے آج تک کسی کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے دھوکہ کیا. اس صورتحال کو پھر ہم نے پارٹی تو چلانی ہے. کیا فرض کریں کہ میرے عہدیدار پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں, پھر میں اس صورتحال میں پارٹی کو ویکیوم میں رکھوں؟ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے فرض کریں ابراہیم صاحب کو ادھر ضلع میں عہدہ دیا ہے تو یہ تو صوبائی سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے, پروونشل لیول کے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہے, اتنے سینئر آدمی ہیں. اس کو ہم نے چھوٹے عہدے پہ رکھا ہے. یہ ہم ٹرانزیشنل فیس ہے, یہ جو ہم نے رکھا ہے یہ تو اس کی کیٹیگری کے حساب سے یا اس کی شخصیت کے حساب سے عہدہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ شخصیت کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو یہ ضلع کا صدر کا عہدہ بہت چھوٹا ہے. وہ ہم نے چونکہ ہماری پارٹی ایک ٹرانزیشن سے گزری, ایک ایونٹ سے گزری, جس کی وجہ سے ہمیں اس پورے پروسیس کے اندر اس طرح کے فیصلے لینے پڑے. ادروائز ہماری جماعتیں جو بنتی ہیں وہ ورکروں کی رائے پہ بنتی ہیں. میری طرف سے لاسٹ کوشچن سر, وفاق میں جو محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر داخلہ ہے اور فیصل وعدہ کو پیپلز پارٹی نے جو 5 اراکین میں ووٹ دے کر سینٹ میں جو ممبر منتخب کیا تھا, وہی سلسلہ اور یہاں کے جو مشیر ہے ان سب کو دیکھ کے کیا آپ یہ سارے جو ایک جمہوری پروسیس سے سمجھتے ہیں سر ان سب کو, یا مداخلت جمہوری پروسیس میں جو مداخلت ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا؟ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. آج پاکستان کی جمہوریت جو ہے وہ ان اے سینس ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہے. ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. اس کے اثرات ہم تک آتے ہیں. جب پاکستان کے اندر جمہوریت کمزور ہوتی ہے تو اس کے ایفیکٹس ہمارے اوپر بھی آتے ہیں. آج گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی کوئی مطلب شاندار جمہوریت نہیں ہے. تو ہم جمہوریت کے لیے پروگرس کرتے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے پروسیس کرتے ہیں, ہم جدوجہد کرتے ہیں, ہم مطلب ٹرو سینس میں جمہوریت کے لیے سٹرگل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر جمہوریت کلنچس میں ہے, جمہوریت کمزور ہے تو ہم سیاست چھوڑ دیں. سیاست چھوڑنا کمزوری ہے. جدوجہد کرتا ہے پولیٹیکل ورکر, اپنی مسلسل جدوجہد میں رہتا ہے. یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمیں بتایا, ہماری شہید بی بی نے ہمیں بتایا. حالات جیسے بھی ہوں, جس قسم کے تلخ حالات ہوں, آپ نے سٹرگل نہیں چھوڑنی. جمہوریت کی بحالی, جمہوریت کو طاقتور کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھنی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج آپ کے سامنے مرکز میں حکومت میں بھی نہیں ہے. ادھر بھی ایس سچ ہم کوئی حکومت میں نہیں ہیں. مطلب آپ دیکھتے ہیں نا, میں اسمبلی میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں نا, اپوزیشن بھی میرے خلاف تقریر کرتا ہے. اپوزیشن کا بندہ بھی, حکومت کا بندہ بھی. میں حکومت میں بھی نہیں ہوں, لیکن تقریروں کا رخ میری طرف ہوتا ہے. مطلب سیاسی جماعتوں کا بھی رخ پیپلز پارٹی کی طرف ہوتا ہے. مطلب حکومت کا بھی رخ پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا ہے. اپوزیشن کا رخ بھی پیپلز پارٹی. یہ پیپلز پارٹی کے اندر یہ کون سی طاقت ہے کہ سب پیپلز پارٹی کو ہی مطلب پورے الزام ٹھہراتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے بھی 2-3 اراکین آپ کے خلاف جاتے ہیں. نہیں, وہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں, ہمیں کسی کی مخالفت سے, دیکھیں مخالفت آپ کو آگے بڑھاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جب بھی آپ کی مخالفت ہوگی تو آپ اپنے اندر یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی طاقت ہے, آپ کے اندر کوئی اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت ہوتی ہے. آج اس پولیٹیکل سسٹم میں پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے تو اس مخالفت کو ہم پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ سمجھتے ہیں. ہم بس کمفرٹیبل ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ ہے. تو ہماری اسٹرینتھ سے اگر وہ خوفزدہ ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کی کیا غلطی ہے؟ پیپلز پارٹی آگے بڑھے گی. بہت شکریہ.